Hello everyone. Let's consider this last topic that is called communication systems. और इसमें हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसको जानेंगे और मोस्टली फोकस करेंगे कि जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट्स हैं उसको हम कैसे डील करने वाले हैं. सो कम्युनिकेशन एज ऑफ डेफिनेशन अगर हम लोग जाएंगे सो इट रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन. सो पॉइंट इज अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन is, or I can write in short, it is an act of transmission of information. So whenever you find there is a transmission of information from one location or one person to another, so this act will be known as communication. For example, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, so there's a communication taking place, or you might be watching news on a TV or listening them that in a radio. That is also communication. Communication can be one way. In case you are listening a news on radio, so that is one way communication. Somebody is sending the information and you are receiving, you cannot communicate back to that directly. And there are modes as well, which is both ways. Like when you are talking to a person, you can communicate, the person can send information to you. So there is a transmission of information, that's called communication. Now for successful communication, there has to be a lot of things that be there. For example, there has to be a language, there has to be a message, there has to be a medium. So we will discuss all those aspects. Now, as far as the language is concerned, we can say for a communication to be effective, there should be a common language. That means a language that will be that is understood by the receiver, and whatever is being transmitted by the speaker. So common language is a necessary condition in order to make the communication effective. अगर कोई डिफरेंट भाषा में बात करता है और दूसरे जो रिसीवर है उसको वो समझता नहीं है, देन यू विल फाइंड कि वो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो फेल कर जाएगा. पर्पस क्या है कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना चाहिए, बट इसका ये भी मीनिंग है कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए और रिसीवर को समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मैसेज दैट इज कमिंग इन. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कम्युनिकेशन इज, सो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं. सो system requires like all the elements that are involved in the communication process is known as communication system. और उस communication system के elements क्या हो सकते हैं? So elements के बारे में अगर हम लोग बात करें तो short में यहाँ पे लिख सकते हैं elements of communication system. Communication system. So there are following elements that are supposed to be there for a communication to take place. Of course, there has to be a source of information. So मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लिख देता हूँ. That's called source of information. So somebody must be releasing some signal. So that is going to be known as source of information. इस source of information से कोई मैसेज आएगा और इस मैसेज को पहुँचना है किसी रिसीवर तक. तो ये जो मैसेज होगा वो सिग्नल के फॉर्म में रहता है. कैसा सिग्नल होता है उसके बारे में लोग आगे बात करेंगे. देन आफ्टर यूल फाइंड कि आपको एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर जो हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे हम टेलीफोन्स और टीवीज़ और रेडियोज़ इनको हम लोग यूज़ करते हैं. सो उसके लिए एक ट्रांसमीटर का होना ज़रूरी है. व्हाट विल बी द रोल ऑफ दिस ट्रांसमीटर? Transmitter is basically going to transmit this in massive signal into a form in which it can be traveled for a distance. So उसके बाद जो मैसेज बनेगा या सिग्नल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड सिग्नल. ट्रांसमिटेड सिग्नल. ये ट्रांसमिटेड सिग्नल एक चैनल के थ्रू मूव करेगा. सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी चैनल. उस चैनल से फिर एक सिग्नल निकलेगा
और वो रिसीवर तक पहुंचने वाला है, तो उसको बोल सकते हैं कि अनदर सिग्नल है जो रिसीवर तक पहुंच रहा है। और एक बार ये रिसीवर तक पहुंचा तो रिसीवर क्या करेगा, इसको फिर से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, so that will become message signal again। और इस मैसेज सिग्नल को फिर आप यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन तक, यूज़र तक ले जा सकते हैं, जो फिर फाइनल यूज़र होगा। सो उस यूज़र तक आप इसको पहुंचा सकते हो, यूज़र ऑफ इन्फो। So this is basically the process, or you can say कि these are the elements that are there in case of a communication system। इसको मैं बॉक्सेस में प्लेस कर देता हूँ एंड फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, somebody who is having the information and want to share that information। That information has to come into some in certain masses signal format, then this massive signal format has to go to this transmitter will convert into in the form which can be transmitted for longer distances, and this transmission will take place through a channel that's like medium, or this channel will pass the transmitted signal to the receiver. Once it goes to the receiver, what the receiver does, receiver is going to convert the transmitted signal in the form of again massive signal which the user can consume finally। So these are the steps through which the communication takes place, and you need to know, you might be asked the steps, any of these steps. Along with these steps, there's one more point that can take place is during the channel when the transmitted signal is moving, you'll find there can come in noise। So noise is going to be something which is unwanted and that can distort a signal. So noise can get in during the medium of transmission। And as far as this communication system is concerned, generally we talk about this as a communication system, which I am putting as a dotted bracket। So from here up to here, this is the communication system। So there's a system. In that system, any information source can come in and send the message signal. This message signal will be transmitted to the receiver, and then this receiver will generate again the message signal, which will be used by the end user। Okay, so these are the elements of communication system, and we need to understand what each and every element is doing। So source of information is releasing the information, transmitter is converting the message signal into transmitted signal, channel is a medium via which that signal is moving, then it is reaching to the receiver, receiver is again converting this transmitted signal into message signal, and then finally it is going to the user। Fine. Now we can learn what are the modes of communication। So if there's a communication taking place, there can be two modes। First is called point-to-point communication। Point-to-point communication. In this point-to-point communication, there's going to be one this transmitter, and there's going to be one receiver। So if there's a one transmitter and there's a one receiver, so this type of communication is known as point-to-point communication। So in short, I can write when there is a one transmitter and one receiver. So whenever there is a one transmitter and one receiver, we will call it as a point-to-point communication। Can you think of an example in which one transmitter and one receiver is there? You'll find these mobiles or telephone। So telephony is example for this। What happens in telephony? There's one person who dial a number or call, and there's one person who is going to receive this call। So receiver is there and there's a transmitter of information। So this is called point-to-point communication। And in this point-to-point communication, generally, if we consider this telephone as example, you'll find
it will be both ways communication. Then there's next called broadcast. So broadcast is another mode of communication. In broadcast, you will find there's going to be multiple receivers and there is going to be one transmitter. So there's going to be one transmitter and multiple, or you can call several receivers. So whenever there are several receivers for one transmitter, it is called telephony. And you can think of examples. There are several examples like programs on radio and TV. These are example of broadcasting. So in this broadcasting, generally, you will find there's a one-way communication, and one transmitter is giving signals which is reaching to several receivers, and simultaneously all the receivers are able to listen the or see or watch or whatever whatever the communication is being transmitted. So these are the two modes that we need to remember. After this, we can talk about some important terms that are being used there. And moreover, these terms are important for us in the examination as well. तो कुछ important terms हैं उनके बारे में समझ लेते हैं. जैसे कि ट्रांसड्यूसर, कई बार आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर. सो शॉर्ट में भी अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे 4 ऑप्शन में से. ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस होती है, कोई भी डिवाइस होती है जो सिग्नल हम लोग यूज़ करते हैं, उस सिग्नल्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. या फिर और ब्रॉडर सेंस में बोले तो जो एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं. तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज अ डिवाइस that converts from one form of energy to another. So एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर. जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको पता होता है कि लाइक आप साउंड को मैसेज सिग्नल देते हैं एंड दैट दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो ये जब सिग्नल में कन्वर्ट होता है, सो जो एनर्जी होती है साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो उसके लिए ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है. सो साउंड एक एनर्जी है और इस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और वही डिवाइस को कहते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर. इसका मतलब है कि जब हम लेट्स से टेलीफोन करते हैं तो वट एवर द साउंड वी प्रोड्यूस, दिस साउंड एनर्जी गोज इनटू ट्रांसड्यूसर which converts it into electrical energy, and then it creates an electronic signal, and that signal passes through a channel and goes to a different location, maybe via wires, maybe via wireless channel, and then goes to the receiver. And in the receiver again there is a transducer installed. What that transducer does, that again converts this electronic signal into the sound. That means electrical energy into sound energy back. So that sound energy becomes again a message, and that message is being perceived or listened or goes to the end user of that information. So transducers plays very very important role in communication systems. अगला टर्म जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिग्नल. सो सिग्नल बेसिकली इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सो जब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसको हम सिग्नल कहते हैं. सो अगर शॉर्ट में लिखेंगे, सो it is information converted in electric form or electrical form. So electrical form में जो information होता है और which is suitable for transmission, of course जो transmission के लिए suitable होगा, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है या इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो सिग्नल है. और ये जो सिग्नल्स होते हैं जनरली 2 तरह से पाए जाते हैं, और
इन दो तरह के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्शन अपने को समझना भी होता है. वन इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल और अनदर इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. इसको बाइनरी सिस्टम और एनालॉग सिस्टम या फिर डिजिटल सिस्टम इस तरह से हम लोग को समझते हैं. एनालॉग सिस्टम क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल ये काफ़ी ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज है. एनालॉग मीन्स समथिंग विच इज़ वेरिंग कंटिन्यूसली और डिजिटल दैट मीन्स वेरिंग इन डिस्क्रीट फैशन, राइट. सो जैसे कि अगर आपको वोल्टेज सिग्नल देना है या फिर करंट सिग्नल देना, मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे बता देता हूँ. सो अगर वोल्टेज को टाइम के साथ आपने प्लॉट किया और लेट से ये साइनोसॉइडल कर्व बनाया, सो ये भी एक सिग्नल है. But this signal is in analog form because this signal is having continuous values of voltage or current over the time. Whereas in digital case, what happens? Digital case, you will find this is going to be discrete. Let's say अगर आपके पास binary system है digital case में, तो आप पाओगे कि either it will be 1 or it will be 0 or it will be 1 or it will be 0 or it will be 1. So it will be some sort of this 0 1. So binary system होगा. So that is a digital signal. And the earlier one was analog system. So difference is what? Analog varies continuously over the time, whereas digital, it is in the steps. And in case of binary, you'll find it's going to be 0 1 0 1 0 1. So digital signals mostly work on a binary system, and binary system uses only 2 digits, which are 0 1, and based on this it does all the calculations. So signal, that means sound, can be converted in terms of 0 and 1. And those 0-1 combination will be known as digital signal, and it can go for a long distance. Or it can also be converted into electrical signal or in form of analog system. So analog system will have a continuously variable variations like sinusoidal curves. Okay. Next term is noise. Noise is something that we don't want. So that again they are signals, but they are unwanted signals. So we can write in short, they are unwanted signals. And these signals try to distort the information. So from transmitter to the receiver, there's a channel in between. In that channel, there can come in noise. That means some unwanted signals can come in, and that can distort the information. And if the information is distorted, then the receiver is not going to get the same information that was transmitted by the source of information. Hence, communication will not be proper and it will be distorted. So purpose is to prevent noises in a communication system, and we try to minimize it as much as possible. Okay, so noise is something unwanted. Okay, after this noise, there's a next term that we can learn is attenuation. काफ़ी important term है. और attenuation means होता है कि जो strength होगी वो loss करेगी over the distance. हम लोग जानते हैं कि जब कोई wave propagate कर रहा होता है, so these are the waves, like either they are in the sound wave form or there is the electromagnetic form or something like that. So when the wave moves, or we can say कि when the signal moves over the medium, then you'll find its strength decreases. Strength means अगर wave है तो हम बोल सकते हैं इसका amplitude कम हो रहा है, जिससे उसकी intensity energy कम हो रही है. So strength decrease होती है. तो ये जो strength का decrease है because of losses in the medium is called attenuation. So इसको short में ऐसा लिख सकते हैं, it is loss of strength of signal. तो सिग्नल का स्ट्रेंथ में जो डिक्रीज होता है, लॉस आता है, उसको हम बोलते हैं अटेनुएशन. और ये किसकी वजह से आता है? वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम. वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम. और बहुत सिंपल सा पॉइंट है. लेट्स से कि अगर दो पर्सन एक डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं, तो आप पाओगे कि जो साउंड का लेवल है वो कम हो जाता है. अगर पास पास है तो उनको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, डिस्टेंस पे जाएंगे तो उनको साउंड कम सुनाई देता है अगर एक बोलता है और दूसरा सुनता है. तो जब डिस्टेंस बढ़ता है तो मीडियम का लेंथ बढ़ जाएगा, उस मीडियम पे जिस पे इसको ट्रैवल करना है, और जिससे उसकी एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होती है तो सिग्नल लॉस हो जाता है.
और सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस होता है बेसिकली, और इसी प्रोसेस को हम लोग अटेन्युएशन कहते हैं. सो आइडिया वुड बी कि अटेन्युएशन से जो स्ट्रेंथ लॉस हुआ है उसको हम प्रिवेंट करें अगर हम एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली रखना चाहेगा. सो अटेन्युएशन को स्टॉप करने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए कुछ एडिशनल सपोर्ट देते हैं सिस्टम को. और ये जो एडिशनल सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं इसी को हम मॉड्यूलेशन कहेंगे, और मॉड्यूलेशन को समझेंगे भी कि मॉड्यूलेशन करने से अटेन्युएशन को रोका जा सकता है, यानी सिग्नल स्ट्रेंथ को लॉस होने से रोका जा सकता है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एम्पलीफिकेशन. व्हाट एम्पलीफिकेशन डज? सो हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है. सो एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्पलीफायर को यूज़ करके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सर्किट को यूज़ करते हैं. सो आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड. सो अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ increasing the amplitude. शॉर्ट में लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम एक प्रोसेस जिससे हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं. अभी हम लोग देखा एम्पलीट्यूड कम होता है, सो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है. उसके लिए सपोर्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लगाते हैं जिसमें एक एम्पलीफायर होता है, और उस एम्पलीफायर की वजह से उसके एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे दैट इज़ एम्पलीफिकेशन. और ये अटेन्युएशन जो इससे पहले आपने पढ़ा अटेन्युएशन, इसको कंपनसेट करने में हेल्प करता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है. सो अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है तो हमको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज रेंज. इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको हम लोग समझ लेंगे. सो रेंज होता है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन बता देते हैं. अगर एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वहाँ से सिग्नल ट्रैवल करता है और डिस्टेंस कवर करता है और जब ये चल रहा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है. सो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ का सिग्नल पहुँचता है उसको हम रेंज कहते हैं. सो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a sufficient strength of signal remains. दैट मीन्स कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है मीडियम के थ्रू, उसमें अटेन्युएशन होता है और भी बहुत सारे लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उसके लॉसेस की वजह से उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा होता है. सो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दैट सिग्नल कैन बी रिसीव्ड ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज. जनरली हम चाहें तो उसको आर से लिख लेते हैं, और ये अपने को पता करना होता है कि कैलकुलेट भी करना होता है. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं. जैसे कि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं कि लेट्स से यू आर मूविंग ऑन अ स्कूटी इन अ सिटी, और आप लेट्स से या फिर कार पर हैं, आप उस पर एफएम को सुनते हैं और एफएम आपको प्रॉपर आता रहता है. लेकिन जब आप सिटी से बाहर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद आप पाओगे कि उसके सिग्नल वीक होते रहते हैं, कभी आता है कभी बंद हो जाता है. सो जहाँ तक ये सफिशिएंटली स्ट्रेंथ का सिग्नल आपको मिल रहा होता है और जहाँ से ये रिलीज़ हो रहा होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेंज. और अगर एक सिग्नल लगा हुआ है तो वो आपको क्या करेगा, सिग्नल की हाइट दे देगा, और सिग्नल की हाइट देने के बाद आपसे पूछेगा कि उसकी रेंज बताइए. सो अगर इसको हम 3D में दिखाना चाहें तो कुछ या फिर इसको प्रॉपर वे पे दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं. लेट्स से ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है जो सिग्नल को रिलीज करने वाला है. ये एंटीना है एच हाइट का. जनरली एच हाइट कम ही रहती है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, बट हम जनरली इसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं अर्थ अपने कंपैरिजन में, सो दैट कि ये काफ़ी दूर तक रेंज को कवर करे. सो अगर यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या एंटीना लगा हुआ है, देन यू विल फाइंड कि इसकी रेंज क्या मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो सिग्नल जाएगा ये सिग्नल कुछ ऐसा जाएगा.
है ना। सो कहाँ तक ये रेंज कवर कर सकता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रैवल कर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, वो इसमें हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए तो हम यहाँ पर भी उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कम्प्लीटली मैक्सिमाइज करना है तो कम्प्लीटली मैक्सिमाइज कुछ इस तरह से जा सकता है। एनीवे केवल अगर यहाँ तक की हम बात करें तो यहाँ तक नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह के एरिया को कवर कर रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा। और जो कौन सा एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सरफेस का एरिया होता है। हालांकि इस तरह का जो फिगर दिख रहा है उसमें एच आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है, बट अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो फिर हम उसको अर्थ को फ्लैट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एच बहुत छोटा होता है तो हाइट हमको ऑलमोस्ट ऐसा नज़र आएगा और अर्थ हमको फ्लैट नज़र आएगा। तो सिग्नल्स कुछ इस तरह से जाते हैं और इस तरह से जाते हैं। सो जहाँ तक उसका सफिशिएंट डिस्टेंस जा रहा होगा इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे दैट इज रेंज। I mean this is area and range will be known as the radius of this circular part. So this is going to be known as a range. Now इससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने एरिया पर अपना सिग्नल जा रहा है। हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल यू आर सर्विंग। जैसे लेट्स से एक टेलीफोनी कंपनी चलाते हैं तो आपको ये पता करना होता है लाइक उसके बिजनेस पार्ट को और उसके सर्विस पार्ट को कि कितने लोगों को आप सर्विस दे पाओगे, हाउ मैनी पीपल आर विद इन दैट जोन। सो हम क्या कर सकते हैं कि आगे पॉपुलेशन डेंसिटी पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है किसी सिटी पर। अप्रोक्सीमेटली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मैनी पीपल आर बीइंग सर्व्ड। फॉर दैट से एक पॉपुलेशन डेंसिटी को आप इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएंगे जहाँ तक ये सिग्नल जा रहा है। कितने यूज़ कर रहे हैं कितने नहीं यूज़ कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी इशू, बट यस वी कैन से कि सिग्नल हमारा कहाँ तक कितने लोगों को कवर करता है, राइट। तो इसको हम रेंज कहते हैं। अगर हमको कभी ये मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़े कि कितना मैक्सिमम जा सकता है तो इसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो उसके लिए आप इसको इससे ज्वाइन करा सकते हैं और ये आर हो जाएगा अपने लिए, ये आर हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज के लिए ये वाला पोर्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहोगे कि अगर इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं तो ये थीटा बहुत कम होगा क्योंकि एच की वैल्यू बहुत कम है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके कैलकुलेट करने के लिए इसको हम आर ई बोल दे रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, और जो रेंज अपने को कैलकुलेट करना है वो ये डिस्टेंस है। सिंस थीटा बहुत छोटा होगा तो आर ऑलमोस्ट आर्क लेंथ को हम छोटा मानेंगे। सो हम आर्क लेंथ जो आर निकालना चाह रहे हैं ये रेंज है, रेंज को हम आर ई इंटू थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल। अगर आप एंटीनास को कंसीडर करते हो, जितने भी एंटीनास हम यहाँ पर लगाते हैं वो आर के डिस्टेंस में काफ़ी कम होता है, इसलिए थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। फिर आप बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ कर लो, उस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा लो। कॉस थीटा को जो अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा बेस डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, और कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको आप चाहते हो ऐसा लिख सकते हो 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई, और जिसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -1। इस तरह का अप्रोक्सीमेशन करना अपने को आता है तो इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। देन यू कैन से कि आपको मिल रहा है थीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एच अपॉन आर ई। That means how much the angle at the center it is going to create is going to be square root of twice h upon re. Now अब इसको वापस आ जाते हैं, रेंज वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि रेंज कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम रेंज है, राइट। अगर स्ट्रेंथ लॉस भी नहीं हो रहा होता है तो फिर मैक्सिमम रेंज कितना अर्थ पर पाया जा सकता है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद वाला जो सिग्नल आएगा वो इधर से चला जाएगा तो वो अर्थ के लोगों को सर्व नहीं करेगा। सो इसमें कर्वेचर को यूज़ करके हम बात कर रहे हैं। सो आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर ई इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √2h अपॉन आर ई। इस पर बेस्ड आपको इक्वेशंस मिलता है। सो रेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेसिकली √2 टाइम्स h इंटू आर ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, रेंज बताना होगा। आपसे पूछेगा कि कितना रेंज जा सकता है या फिर कितना मैक्सिमम एरिया सर्व कर सकता है, तो आप आर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आर के लिए आप बोलेंगे 2h इंटू आर ई। वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, हाइट देगा। बोलेगा कि एक एंटीना है जिसकी हाइट इतने मीटर है या इतने यूनिट पर है, और आर ई आपको पता होगा रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो भी आएगा वो उसका रेंज कहलाएगा। फाइन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ।
बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई सिग्नल जा रहा होता है ना, तो उसमें वेवलेंथ्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और सिग्नल भी कई तरह से होते हैं, लाइक वॉइस सिग्नल होता है, पिक्चर सिग्नल होता है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल होता है, डाटा होता है, कंप्यूटर डाटा होता है। सो कई तरह के सिग्नल्स अपने जाते हैं। सो अगर हमारा सिग्नल जा रहा होता है तो उस सिग्नल का भी एक बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ होता है क्या है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व। सो जैसे हम लोग बोलते हैं ऑडियो रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये बोल सकते हैं ये ऑडिबल बैंडविड्थ है, जिस पर अगर कोई सिग्नल ऑडिबल पे जाएगा तो इसी के बीच में जाएगा। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। कई बार आपसे पूछेगा कि बैंडविड्थ कैलकुलेट कीजिए, तो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वट एवर इट इज गोइंग टू कम इन, दैट विल बी नोन एज बैंडविड्थ। ये जो बैंडविड्थ होता है वो सिग्नल का होता है, एज वेल एज मीडियम का भी होता है। सिग्नल का अलग अलग होता है। अगर ऑडियो सिग्नल है तो वो इस बैंडविड्थ पे जाएगा जो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो सिग्नल का भी आएगा, और बैंडविड्थ किसका आएगा, मीडियम का भी आएगा ना। अगर मीडियम का ज़्यादा बैंडविड्थ है तो उस पर नंबर ऑफ सिग्नल्स ज़्यादा आ सकते हैं, और अगर मीडियम का बैंडविड्थ कम है तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कम आएंगे। तो इस पर बेस भी एग्जामिनेशन आ चुका है और आता भी है। वो आपको मीडियम का बैंडविड्थ देगा कि इतना मीडियम बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो कितने सिग्नल्स जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेलीफोनी है, हम लोग फ़ोन करते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा मोबाइल फ़ोन में वो बोलता है कि सारी लाइंस व्यस्त हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। मीनिंग इज़ दिस कि जितना भी बैंडविड्थ अवेलेबल है मीडियम का, वो बाकी सारे सिग्नल्स ने कवर कर रखा है। तो अगर कोई भी बैंडविड्थ खाली मिलेगी उस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग, तो फिर नेक्स्ट कॉल को एंट्री मिलेगी। तो अगर आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स को भी कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ signals, this can be calculated as medium bandwidth, मैं इसको एज ए फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, आएगा तो डायरेक्टली आप यूज़ कर लोगे, डिवाइड बाई सिग्नल बैंडविड्थ। मीडियम का बैंडविड्थ ऐसा हो सकता है, दे सकता है कि लाइक कि इतना बैंडविड्थ है, लेकिन उसका कितना प्रोपोर्शन आप यूज़ कर रहे हो, तो जितना यूज़ कर रहे हो मीडियम का डिवाइड बाई सिग्नल का इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं। सो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी कॉल्स कैन बी कनेक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम। अगर उस मीडियम का आपको बैंडविड्थ दे रखा है और ईच कॉल का बैंडविड्थ दे रखा है, तो उसको हम डिवाइड करके बता सकते हैं कि कितने कॉल्स साइमल्टेनियसली लग सकते हैं। ये साइमल्टेनियसली की बात हो रही है। एक कॉल कनेक्ट होने के बाद दूसरा लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली अपने को कॉल्स करानी है टेलीफोनी केस में, तो आप कितने यूज़र्स एक साथ बात कर सकते हैं, उसके लिए हम बैंडविड्थ को कैलकुलेट यूज़ करके बता सकते हैं। तो इसलिए बैंडविड्थ प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। तभी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए तो हम ज़्यादा बैंडविड्थ लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बैंडविड्थ इज लाइक अ चैनल एंड डाटा इज कमिंग ओवर इट। बिगर द चैनल मोर डाटा कैन कम साइमल्टेनियसली। और कैलकुलेशन कैसे करना है, फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैलकुलेट करना है फाइनल माइनस इनिशियल को लेकर के। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मॉड्यूलेशन, और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉड्यूलेशन को समझ लेते हैं। सपोज कर लिए अपने पास एक मैसेज सिग्नल है, और ये जो मैसेज सिग्नल है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मैसेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा मैसेज सिग्नल का AM, और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा m इंटू टी। सो एक मैसेज सिग्नल है। सिग्नल्स ये एनालॉग के फॉर्म में है, साइन और कॉस वेव के टर्म में हम लिख सकते हैं। और लेट्स से ये लो फ्रीक्वेंसी का, तो अगर ये लो फ्रीक्वेंसी है यानी ओमेगा की वैल्यू छोटी है, सो लो फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर लो फ्रीक्वेंसी को आप लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि इस पर लॉसेस वगैरह रहते हैं। सो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसीज के मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए इश्यूज़ रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक आइडिया यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और बेसिकली अगर लूज सेंस में बात करें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि लाइक हम इस वेव को एक दूसरी वेव से इन्वलप कर देते हैं, और उस इन्वलप के इनसाइड में इस वेव को रख देते हैं, और ट्रैवल इन
इन्वलप वाला वेव करता है, इसको कैरियर वेव कह सकते हैं, वो कैरियर वेव इस वेव को लेकर के चला जाता है और जहाँ पर रिसीवर मिलेगा वहाँ पर इस वेव को रिलीज कर देगा। सो जिससे क्या होता है कि ये वेव ट्रांसमिट नहीं कर रही होती, ये इन्वलप के इनसाइड में होती है और जो कैरियर वेव होती है, इन्वलप वेव होती है, वो मूव कर रही होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैरियर वेव को डिज़ाइन करते हैं और कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव को यूज़ करते हैं। लेट्स से वो कैरियर वेव हमारे लिए सी है, सी फॉर कैरियर, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, उसका अपना एम्पलीट्यूड होगा ए सी और उसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा सी। ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हाई फ्रीक्वेंसी का केस होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। सो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को हम यूज़ करेंगे और अपने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कराएंगे और जिससे कि उसके लॉसेस को बचाया जा सके, ये आइडिया है। सो दिस इज कैरियर, दिस इज ओरिजिनल मैसेज, पर्पज इज टू सेंड दिस मैसेज एंड लॉन्ग डिस्टेंस में इसको नहीं सेंड किया जा सकता था बिकॉज ऑफ लॉसेज, जैसे स्ट्रेंथ जा रहा था तो कैरियर में इसको इन्वेलप करने वाले हैं। नो, जो मॉड्यूलेशन इस ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम कैरियर वेव के अंदर मैसेज वेव को लेकर के आगे ले जाते हैं और ट्रांसमिट कराते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स। मेकिंग सेंस? तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन होता है वो कई तरह से हो सकता है, क्योंकि आपके पास देखो वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पर। हालांकि हमने फेज डिफरेंस नहीं लिखा है क्योंकि आप जानते हो जब कभी हम वेव लिखते हैं तो फेज डिफरेंस भी आता है, ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर भी फाई आएगा। सो यहाँ पर फाई को नहीं लिखा है, बट यस ओरिजिनली इसको लिखा जा सकता है। तो जो मॉड्यूलेशन है वो किस तरह से हो सकता है, उसको हम जनरली इस तरह से बोलते हैं, या तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो उसको हम AM बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज नोन एज FM, या फिर हम फेज मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं, फेज मॉड्यूलेशन, तो उसको हम बोलते हैं PM। सो जनरली दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन दैट वी डू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। बिकॉज हम वी नो कि एक वेव में एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक फेज होता है। सो इनमें से किस पैरामीटर को आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग मॉड्यूलेशंस होते हैं, AM, FM एंड PM। नो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, और उसके लिए हमने फाई को नहीं यूज़ किया है, और फिर इससे कुछ फार्मूलाज बनेंगे और उसको हम लोग फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM which is amplitude modulation। Now अगर अपने पास ये मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर वेव है तो हम कैरियर वेव के अंदर मैसेज सिग्नल को लेके जाएंगे। अगर कैरियर वेव के अंदर मैसेज सिग्नल को लेके जाते तो जो सिग्नल बनने वाला दैट विल बी नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हम लिखते हैं CM, दैट मीन्स कैरियर के अंदर मैसेज है जो कि मॉड्यूलेटेड है T। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्जन है, वो मैं अभी ये पे सॉल्व कर लेता हूँ और फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। सो इसको ऐसा लिखेंगे कि जो AC था इसका एम्पलीट्यूड कैरियर का, उसी के साथ ये मिल जाएगा, दैट मीन्स AC प्लस AM साइन ओमेगा MT, और ये इन्वलप हो गया किसके अंदर, साइन ओमेगा CT के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि किस तरह से हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैरियर के अंदर इन्वेलप करते हैं। सो दिल बिकम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर एक मैसेज सिग्नल है, कैरियर वेव है, तो फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या बनेगा, तो इसके एम्पलीट्यूड के साथ इसको ऐड कर देने का, तो आपको पता चल जाएगा कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या निकल कर के आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेसिकली AC साइन ओमेगा CT प्लस AM और साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। अगर आप इसको प्रॉपरली लिखना चाहें तो आप साइन C इंटू साइन D का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको मैं कैरी करता हूँ। सो ये बनेगा AC, इसको ऐसा रखते हैं, साइन ओमेगा CT। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं AC लिख दे रहा हूँ,
तो अगर आपने ए सी लिखा है तो आपको ए एम अपॉन ए सी लिखना पड़ेगा इंटू साइन सी इंटू साइन डी अगर लिखा हुआ है तो ये बनेगा हाफ कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम ब्रैकेट लगा सकते हैं और इट्स गोइंग टू बी कॉस ए माइनस बी, दैट मीन्स ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी बाई 2 इंटू टी minus cos A plus B. So this becomes cos A plus B, that is omega m plus omega c by 2 into t. कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, हमको पता है कि ओमेगा सी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो कॉस को अंदर अगर हम प्लस माइनस को चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस कैन बी रिटन एज इन दिस मैनर ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ये जो ओमेगा ए एम बाई ए सी है इसको जनरली हम म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये बनेगा ए सी इंटू म्यू क्योंकि वो फ्रैक्शन है। और अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बाई 2 इंटू टी। और एक और टर्म मिलेगा अपने को माइनस म्यू ए सी डिवाइड बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बाई 2 इंटू टी। वेल ये मैथमेटिक्स है, अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली देखना है कि फाइनल हमको क्या मिला हुआ है। ये जो फाइनल में अपने को मिला ये काम का है और इसी का इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे और इसी के बेस पर अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। एक तो ये म्यू क्या है उसके बारे में, तो म्यू हम अभी लिख लेंगे, और दूसरा कितनी वेव्स इन्वॉल्व हैं। सो जब हम लोगों ने कैरियर वेव के अंदर मैसेज सिग्नल को डाला और फिर एक वेव क्रिएट की, मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्रिएट किया, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बेसिकली ये बना। और इसको जब हम लोगों ने अलग अलग लिखा तो अपने पास 3 टर्म्स आ रहे हैं। हम लोग वेव में पढ़ चुके हैं कि ये 3 डिफरेंट वेव्स का सुपर पोजिशन बता रहा है। सो बेसिकली वो जो कैरियर वेव बना वो 3 वेव्स के सुपर पोजिशन जैसा चल रहा है। तो एक ये फर्स्ट है, एक सेकेंड है, एक ये थर्ड है, और इनकी सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो आपसे ये पूछता है जनरली कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज बन करके जा रही हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, अनदर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बाई 2, और अनदर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बाई 2। सो दीज आर दी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो अब लोग फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सो एक तो ये म्यू है, म्यू किसको लिखा गया वो समझा देते हैं। सो म्यू इज बेसिकली AM अपॉन AC। AM अपॉन AC को म्यू बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि व्हाट फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आपको AM बताएगा, AC बताएगा, या फिर मैसेज वेव और कैरियर वेव बताएगा, वहाँ से निकाल करके बता सकते हैं। और प्रैक्टिस में हम लोग जनरली म्यू को 1 से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। सो ये कंस्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो। दूसरा कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं और जो एम्पलीट्यूड है या जो वेव इन्वॉल्व है उनको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको जनरली एक ग्राफ से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड है। तो अगर एम्पलीट्यूड को हम फ्रीक्वेंसी के साथ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलने वाला है उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप देखोगे कि एक फ्रीक्वेंसी है, अगर इसको मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँ, ओके, एक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी कैरियर वाली, और उसके करस्पॉन्डिंग कितना एम्पलीट्यूड आ रहा था, ओमेगा सी के करस्पॉन्डिंग आपने देखा वो AC एम्पलीट्यूड आता है। फिर इसके बाद में 2 और फ्रीक्वेंसी हैं, एक इसकी लेफ्ट साइड लाई करेगी और इसके राइट साइड लाई करेगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और दूसरा फ्रीक्वेंसी आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बिकॉज कि ये 3 वेव्स का सुपर पोजिशन था। इन दोनों के एम्पलीट्यूड अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम आया था। कितना आया था, म्यू AC बाई 2। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पूछता है, आपको 2 वेव्स दे देगा और पूछेगा बताइए कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। तो अगर ओमेगा सी पता है सो ओमेगा सी अवेलेबल होगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम अवेलेबल होगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम अवेलेबल होगा। फिर आपसे पूछेगा उनके एम्पलीट्यूड्स बताइए। तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका रहता है, कैरियर वेव का। और ये जो 2 फ्रीक्वेंसीज के वेव आ रहे हैं
उनका एम्पलीट्यूड बराबर रहता है। फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में पूछता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस ग्राफ से बता सकते हो। इसलिए मॉड्यूलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें हम एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसीज के साथ में कैसे लिंक करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया। फाइन। नेक्स्ट जो लॉजिकल टर्म है वो डीमॉड्यूलेशन है। तो एक बार हमने कैरियर के अंदर मैसेज सिग्नल को इन्वॉल्व किया तो ये रिसीवर तक पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पर जाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैरियर को अलग करना पड़ेगा और उससे मैसेज को निकाल के बाहर लाना पड़ेगा। तो डीमॉड्यूलेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में हमने कैरियर के इनसाइड में मैसेज को रखा था, अब हम मैसेज को कैरियर से बाहर निकालेंगे। सो रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं। So this is the process of retrieval of information from the carrier wave, so जो कैरियर वेव था उससे इंफॉर्मेशन को हम रिट्राइव करते हैं, और कहाँ पर, जब हम रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो रिसीवर के टाइम पे करेंगे, तो एट द पॉइंट ऑफ रिसीवर वी डू सो दैट्स कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। मेकिंग सेंस? एंड देन देयर इज अनदर स्मॉलर टर्म कॉल्ड रिपीटर। सो रिपीटर क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, इसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ, वो कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ कि लेट्स से कि अगर अपने को ये अर्थ समझ में आता है, तो यहाँ पर आपने एक अपना ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, तो इस ट्रांसमीटर से सिग्नल जाएंगे, और लेट्स से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचानी है। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। सो किसी और पॉइंट पर पहुँचानी है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे। तो ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली सिग्नल नहीं जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली सिग्नल मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। वो कितना मैक्सिमम जाता है वो हम लोग पता कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद जो सिग्नल होंगे वो इस तरह से जाएंगे, और ये सिग्नल अर्थ के अनसाइड में चले जाएंगे। सो अपने को क्या करना होता है कि उसके लिए फिर रिपीटर्स को लगा देना होता है। एक आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये क्या करेगा कि इससे अपना सिग्नल इसको दे देगा। देन अप्लाई अनदर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सिग्नल। तो ये फर्स्ट ने ट्रांसमिट किया, सेकेंड ने रिसीव किया, फिर सेकेंड ट्रांसमिट करेगा, ये थर्ड रिसीव कर लेगा, और फिर थर्ड से अगर आपको फोर्थ के पास ले जाना है तो आप फोर्थ के पास ले जा सकते हो। सो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन 1 to 2 to 3 to 4 ले जा सकते हैं। अच्छा, जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो इसका मतलब ये सारी पॉपुलेशन सर्व हो रही है, क्योंकि ये सिग्नल तो स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। सो ऑल द पॉपुलेशन बिटवीन 1 and 2 इज बीइंग सर्व्ड। सिमिलरली जब 2 से 3 जा रहे होते हैं तो बीच के सारे पॉपुलेशन को सर्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिपीट करते रहते हैं। तो दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कॉम्बिनेशन विच इज बीइंग रिपीटेड इज नोन एज रिपीटर. So what is the purpose of repeater? To increase the range, to cover more areas in providing the massive signal. Okay, so that's a repeater. So these were the some important terms जिसको हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पर, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जनरली आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉड्यूलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, या फिर बैंडविड्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, या फिर रेंज, जो मैक्सिमम रेंज हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछता है। आफ्टर लर्निंग दीज टर्मिनोलॉजीज, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं उनको समझ लेते हैं, और उनके क्या नॉमेनक्लेचर चलते हैं। उसके लिए मैंने एक पिक्चर बना रखी है। ये जो पार्ट दिख रहा है वो अर्थ का पार्ट है। सो अर्थ इस तरह से एक बड़ा सा बॉडी है जो कि नीचे जा रहा है, उसका कर्वेचर वाला पार्ट अपने को दिख रहा है, और ये एटमॉस्फेयर है, और एक एटमॉस्फेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं तो एक लेयर मिलती है जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर रफली 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ये जो आयनोस्फीयर होता है, इस पर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं या एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, क्योंकि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, वो उनको आयनाइज कर देते हैं। सो यहाँ पर आयंस के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सो आयंस पाए जाते हैं, पॉइंट इज दिस, तो उसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन केस में। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग एंटीना लगाते हैं, पहले हम लोग ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जैसे ये ग्राउंड पर है, सो लेट्स से कि यहाँ पर ये एक ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर ने इन्फॉर्मेशन को दिया, और यहाँ पर एक रिसीवर आप लगाओगे तो वो रिसीवर इन्फॉर्मेशन को ले लेगा।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वेव ट्रांसमिट हो रहा है वन लोकेशन से टू अनदर लोकेशन पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो इसको जिस वेव के थ्रू बोलेंगे उस वेव का नाम होगा ग्राउंड वेव. सो ग्राउंड वेव आर बेसिकली moving, or they transmit signal from one antenna to another antenna which are at a certain height above the earth surface. सो ये ग्राउंड वेव होते हैं. ग्राउंड वेव में जनरली आपसे पूछता है कि एंटीना की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि जो एंटीना की लेंथ आनी चाहिए वो वेव लेंथ पर डिपेंड करती है. सो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एंटीना जो रिक्वायर्ड होता है दैट शुड बी greater than or equal to lambda by 4, whereas the lambda is the wavelength of the wave that is being transmitted. So आपसे पूछेगा कि मिनिमम बताइए, सो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए एंटीना का, वो लेमडा बाई 4 होगा. इस पर भी क्वेश्चन आ चुका, वो लेमडा देगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड वेव के लिए मिनिमम कितने लेंथ का या कितने साइज का एंटीना की ज़रूरत पड़ती है. ग्राउंड वेव क्या होता है, ग्राउंड से ग्राउंड पे चल रहा होता है. फिर क्या होता है, दूसरे तरह के वेव्स क्या होते हैं कि जो यहाँ से वेव्स जा रहे होते हैं और ये आयनोस्फीयर पे जा करके कोलाइड करते हैं. आयनोस्फीयर से कोलाइड करने के बाद में भी ये रिसीवर तक जा सकते हैं. मैंने रफ पिक्चर बनाया, आप इसको बेटर कर सकते हो. सो वेव्स जाते हैं आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाते हैं. जब आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आते हैं और अपने ये ट्रांसमीटर से चला इस रिसीवर तक पहुंच गया. रिसीवर और भी कहीं होंगे तो वहीं भी जाएगी, क्योंकि ये इनका रिफ्लेक्शन इस तरह से हर पॉइंट पे चल रहा होगा, तो अलग अलग लोकेशन पर इनकी सिग्नल्स जा रहे होंगे. सो रिसीवर अप्रोप्रिएट रिसीवर्स को अचीव कर लेगा. इस तरह के जो वेव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं दे आर स्काई वेव्स. Sky waves. So sky waves are those waves which are being transmitted from a transmitter and goes and get reflected through the ionosphere and reaches to the receiver finally. So इनको हम बोलते हैं they are sky waves. इसके बाद अपने पास सैटेलाइट वाला भी केस होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट इसको फिर से अपने रिसीवर तक भेज देता है. सो ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोपगेशन होता है. They are called space waves. Space wave. So basically they are three waves that we are using in case of communication. Either we use a ground wave for antenna to antenna. For उसके लिए एंटीना की जो मिनिमम साइज होनी चाहिए वो lambda by 4 होनी चाहिए. फिर स्काई वेव्स वो होते हैं जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के, सो स्काई वेव्स आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फीयर एंड गेटिंग टू द रिसीवर. एंड थर्ड इज फ्रॉम द सैटेलाइट. सो ये स्पेस वेव्स जो हैं, स्पेस वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में. और आप जानते हो कि अगर आपको इंटर अर्थ कवर करना है तो फिर ग्राउंड वेव से यूज़ करना मुश्किल होगा. और आयनोस्फीयर भी से रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा स्पेस कवर नहीं कर पाता है, लेकिन सैटेलाइट से हम कवर कर सकते हैं. और हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ था कि आपको मिनिमम 3 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है टू कवर द इंटायर अर्थ फॉर एनी सिग्नल, राइट. सो दीज 3 टाइप्स ऑफ वेव्स जो हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो आपको समझना है. और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे. आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स को हम क्या नाम देते हैं, हम बोलेंगे स्काई वेव्स देते हैं. क्यों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर में आयंस होते हैं और ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो दोनों में इंट्रैक्शन होता है. बिकॉज आयन दे आर चार्ज, दे आर मूविंग, सो देयर इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होता है. सो बाय दैट रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं. सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट तो हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट पे सिग्नल जाता है, सिग्नल सैटेलाइट को फिर वहाँ तक भेजता है. जो DTH सर्विसेज हैं डायरेक्ट टू होम, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू चल रहे होते हैं, राइट. सो दैट्स अ कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट एज वेल एज ionosphere reflection as well as from the ground antennas. Okay. Well, so these are the important points related to communication that you need to know for this examination, and they are entirely based on the this NCERT book. So आप एक बार NCERT book को इसके साथ और पढ़ लेंगे और भी पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और जितना important पोर्शन था उस पर almost covered. So that's all for this. Thank you everyone.